नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुष्य संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। हर साल 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर नाट्यवृक्ष संस्था हर साल नृत्य को समर्पित एक आयोजन करती है। आज कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। अनाथ रक्षक। विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर नाट्यवृक्ष संस्था ने 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। परम कृपा सागरा जनु किडदीन दीन किडदो। दोनों दिन नृत्य पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें नृत्य की बारीकियां सिखाई गई। शाम में यंग डांसर्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग डांस फॉर्म के साथ यंग डांसर्स ने परफॉर्म किया। I'm most delighted to be invited for this very beautiful festival completing its 18th year on the occasion of World Dance Day, curated by Geeta Chandran ji, Rajiv ji and their team Natya Vriksha. It's a pleasure to dance for the dance day and I'm really looking forward to present my work. Thank you, namaskar. In this performance, I will be showcasing some choreographies of Padma Bhushan late Dr. Vempati Chinna Satyam Garu's and my own gurus, Guru Srimati Sita Nagajyoti and Guru Shri P. Nagajyoti's choreographies. It will be interesting because I'll be involving some Vachika Abhinaya, that is the speech, and which is the traditional material, traditional performance of Kuchipudi, where we engage with the audience in the form of some dramatic dialogues between the dancer and the musicians and the Natuvanar, who will be playing Madhavi and I'll be playing Satyabhama. हर साल विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर नाट्य वृक्ष की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना और गुरु पद्मश्री गीता चंद्रन की कड़ी मेहनत और परिकल्पना का प्रतिफल है यह सफल आयोजन। Then earlier they had a system of having a younger dancer dance first and then have the seniors dance. So it was like a dream come true because I danced before Yamini Akka, who was my idol at that time. And nothing could have been better. And I was shaking and shivering because she was also there backstage. And I took her blessings and went on stage. And it was something that I can never forget because dancing before her was like, oh my God, what do I do? So these are some lovely memories I've had. After that, of course, going and dancing in basketball courts, in makeshift stage where the tables are put together and you don't know next movement, whether you're going to go down or whether you're still going to be on stage, you don't know. All those kinds of experiences. Doing 3 programs a day and then, in the night taking a train and your bones are all literally cracking and they're aching. Madhavi is there. She's part of this journey. She's been very much done all that I'm talking about. So I think this is what taught us about resilience, about thinking beyond just performing in very, very elite spaces and taking arts to kids. If I'm thinking about arts education, it's because of my SPICMECE journey. I'm very, very involved and very, very committed to arts education today simply because I've talked to so many young people across
villages, kasbas, little places, and what is their aspiration vis-a-vis the arts, and how they would like the arts to be integrated, how talking to teachers, talking to principals, talking to owners of schools. I think it's been a journey with all these stakeholders, and today I feel I would like to spend rest of my, if other than the performing time, I would certainly want to give it to arts education, and that I should thank Kiran Seth for that. எங்கோ திருமேனி इस उत्सव की खासियत है कि इसमें शास्त्रीय, समकालीन और प्रयोगात्मक नृत्य शैलियों का समावेश किया जाता है। युवा कलाकारों ने अपने नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। मैंने आज 3 प्रस्तुतियाँ करी थी। उसमें से पहली थी एक पुष्पांजलि, जो कि एक बहुत ही सुंदर रागम शिव शक्ति में उसकी कॉम्पोजिशन थी, और इसके बाद एक श्लोकम किया था जो कि शिवा के ऊपर था। उसके पश्चात मैंने एक वर्णम किया। वर्णम भरतनाट्यम का बहुत ही एक महत्वपूर्ण पीस होता है, जो कि जिसमें अभिनय जो कि एक्सप्रेशंस होते हैं वो, और प्योर डांस या नृत्य, उन दोनों का बहुत ही सुंदर समावेश होता है। और यह प्रस्तुति मैंने करी आज एक श्रृंगार वर्णम के माध्यम से, जो कि था रागम कमास में। और इसके पश्चात मैंने एक देवी के ऊपर एक कॉम्पोजिशन किया जिसका नाम है शारदा भुजंगम। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक कॉम्पोजिशन है, जो माँ शारदा, जो श्रृंगेरी की माँ शारदा हैं, उनके ऊपर आधारित एक कॉम्पोजिशन है, और वो मैंने आज प्रस्तुत किया। मैं काफ़ी सालों से गीता का के पास सीख रही हूँ भरतनाट्यम, और उनके प्रोत्साहन से आज ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। और सभी यंग डांसर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहें, और मौके अपने आप सामने आएंगे, और आप लगे रहें बस। थैंक यू। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 26 और 27 अप्रैल को किया गया था। इस साल स्पीक मैके के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। इस आयोजन का एक आकर्षण यह भी था, युवा वर्ग में भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सोसाइटी स्पीक मैके की स्थापना 1977 में डॉक्टर किरण सेठ ने की थी। नाट्य वृक्ष के इस आयोजन को लोगों ने काफी पसंद किया। कलाभिर विनिद्रा कलापै सुभद्रा कटाक्षे दया हते ज्ञान मुद्रा कलाभिर विनिद्रा कलापै सुभद्रा पुरस्ते विनिद्रा पुरस्तुंगभद्रा भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बा पुरस्ते विनिद्रा पुरस्तुंगभद्रा भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बा भजे शारदाम्बा अजस्रं मदम्बा। उत्तराखंड के चमोली जिले में विश्व धरोहर रम्माण मेले का आयोजन सदियों से किया जाता रहा है। आज विरासत में देखते हैं इसी मेले पर आधारित एक रिपोर्ट। चमोली जिले के स्लूट टुकरा में 30 अप्रैल को विश्व धरोहर रम्माण मेले का भव्य आयोजन किया गया। पहली बार जिला प्रशासन के सहयोग से रम्माण मेले का आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंत या मई के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर रम्माण से संबंधित पूजा अर्चना और अनुष्ठान बैसाखी से ही शुरू हो जाता है।
इसी दिन इस मेले के मुख्य आयोजन की तिथि भी निकाली जाती है। 29 अप्रैल की रात मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया, जबकि 30 अप्रैल को भूम्याल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मेले का आयोजन हुआ। मेला इस बार पर्यटन विभाग ने आयोजित किया था। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला भी इस आयोजन में शामिल हुए। भी आबादी खूब एक स्थल संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है वो कई सारा 8वीं सदी से लेकर आज तक ये दर्शना आता हर साल होते हैं। में ये कल्चर आगे बढ़ा रहे हैं और ये दूसरी पीढ़ी के को देख करके लगातार ये पीढ़ियां अपने कल्चर के ध्वजवाहक है और इस क्षेत्र के लिए और संपूर्ण करवाल के लिए अपने संस्कृति के लिए अपनी जो के लिए समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि वैष्णव जो धर्म है उसके जब उस क्षेत्र में जब केदारखंड के क्षेत्र में इनका आना हुआ उस समय से यहाँ जब वैष्णव संकाय गाना सुखो तो उन्हें यहाँ किसका आती जाती आती गई। बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारा है। 8वीं शताब्दी में जब आदिगुरु शंकराचार्य जी इस देवभूमि में आए और ज्योतिर्मठ में तप किया और बद्रिकाश्रम में रहे, वहाँ पर उन्होंने गीता भाष्य, विष्णु सहस्त्रनाम भाष्य और ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना की। यहाँ के लोगों को भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति एक आस्था जागृत करने का काम किया, जागरूक करने का काम किया, सनातन धर्म का अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। और उसी समय से ये मुखौटा नृत्य रामायण और महाभारत की जो लीलाएं होती हैं हमारे गांव में 1200 साल से। रम्माण का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। यूनेस्को ने 2 अक्टूबर 2009 में रम्माण को विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। रम्माण की प्रस्तुति गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भी की जा चुकी है। यह एक पारंपरिक लोक उत्सव है जिसमें रामायण और महाभारत की कथा मुखौटा नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। इस आयोजन में 18 मुखौटे, 18 ताल, 12 ढोल, 12 दमाऊ और 8 भंकोरे का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य नाटिका की विशेषता है कि इसमें पात्रों का संवाद नहीं होता है। इसे गीत, ढोल और ताल के साथ प्रदर्शित किया जाता है। संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में छोड़े जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगांव सेक्टर की बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा 26 निर्दोष हिंदुओं के नरसंहार की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सांस्कृतिक संस्था उड़ान, एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन ने 24 अप्रैल को दिल्ली के मंडी हाउस में इस हमले में मारे गए लोगों की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया। ये जो घटना पहलगांव की हुई है, हम सब उससे बहुत व्यथित हैं, क्योंकि उड़ान हमारा एक संगठन है जो कि कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कला के क्षेत्र में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, संस्कार भारती, उड़ान और ऐसे बहुत से संगठन हैं। तो मन में विचार आया कि कलाकार की भी एक अपनी भावना होती है व्यक्त करने का, उसका एक अलग माध्यम, एक तरीका होता है। तो क्यों ना इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर मंडी हाउस पे करें। और सब कलाकारों के मन में एक रोष था, क्योंकि इस संस्था का प्रमुख होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता था कि मैं इसमें कदम उठाऊं, इनिशिएटिव लूं। परसों की ये घटना है, मैं परसों से पूरी रात सो नहीं पाया था। कल रात को
10 बजे हमने इस कार्यक्रम की योजना बनाई, रचना बनाई और ये तय किया कि इस कार्यक्रम को हम मंडी हाउस पर करेंगे और इसमें सभी ने अपना पूरा सहयोग देने का हमें वचन दिया। रात को ही मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी, मैंने रात को 12 बजे उनको उठाया सोते। उन्होंने कहा अनुपम जी जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। मैं कहा सहयोग नहीं, आपके नेतृत्व में हम ये रैली करेंगे, ये छोटा सा आयोजन श्रद्धांजलि सभा, हम जो भी इसको कहें हम ये करेंगे। तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और मुझे लगता है कि कलाकार का कहने की अपने एक अलग तरीका है। आप यहाँ देख रहे हैं 40-45 फुट का एक यहाँ पर एक कैनवास है। जो चित्रकला के हमारे कलाकार हैं वो चित्रकला के माध्यम से कितने अच्छे उन्होंने चित्र बनाए हैं। वो मुंह से कुछ नहीं कहते, वो अपनी तूलिका से वो सब कुछ कह गए। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और कवियों ने जो काव्य पाठ किया उसमें एक ऐसा रोष था। मुझे कारगिल के युद्ध के बाद हमने एक कवि सम्मेलन किया था, चुनौती है स्वीकार, मुझे उसकी याद आ गई आज। कवियों को अधिक समय नहीं मिल पाया, लेकिन अपनी छोटी छोटी रचनाओं में से भी उन्होंने ऐसा एक संदेश भेजा है कि ये पूरे भारत को जागृत करेगा, जो पूरा एक सबको एकजुट करेगा। इस सभा में कलाकारों, कवियों, नाटककारों और युवाओं के साथ साथ आम लोगों ने एकत्र होकर इस घटना पर रोष और चिंताएं व्यक्त की। मंडी हाउस में 50 मीटर का एक कैनवास बिछाया गया था, जहां कलाकारों और आम लोगों ने चित्रों, नारे और संदेशों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की और पहलगांव में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। हमारे सनातन में जितने भी देवता हैं सबके हाथों में हथियार हैं। मुझे लगता है कि अब सनातन को पूरी तरह से उन आशीर्वाद के हाथों में हथियार लेकर चलने की आवश्यकता है। मैंने अपने इस कार्टून में यही डिपिक्ट किया है कि हमारे हाथ में आशीर्वाद, अगर हमारे हाथ से आशीर्वाद जाता है तो हमारे हाथ में हथियार भी आ सकता है। इस समय धर्म को पूछ करके जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, ये डायरेक्ट सनातन पर हमला है और उस हमले को विफल करने के लिए हमने हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा और सनातनी हथियार उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको इसमें डिपिक्ट किया। पहलगांव के इस आतंकी घटना का कविता के माध्यम से कड़े शब्दों में विरोध किया गया। काफिर हिंदू की हत्या को अपना धर्म बताते हैं, जेहादी नारों के दम पर द्वेष घृणा फैलाते हैं, जिनके फतवों के कारण ही धर्म आज शर्मिंदा है। मानवता का हत्यारा ये हाफिज जब तक जिंदा है, नापाक मदरसों में पढ़कर ये पाकिस्तानी आए हैं, जिनके कारण आज विश्व में काले बादल छाए हैं। आतंकवाद की घटनाओं को अगर धर्म से जोड़ोगे, मानवता से धर्म का नाता तुम बिल्कुल ही तोड़ोगे। उन लोगों की क्या कहिए जो घर को आग लगाते हैं, अन्न यहाँ का खाते हैं और गीत वहाँ के गाते हैं। अमन चैन हमने दुनिया का हरगिज नहीं मिटाना है और आतंकवाद के कारिंदों को मिलकर सबक सिखाना। बहुत अच्छा। पग पग पर आए हो गिरते तुम नजरों में हमारी, बेबहस बेसिर पैर की करते हो तुम नजरों में हमारी, नजरों में हमारी। तुमसे न कभी पटेगी ए पाक ये जानते बसीन, ये जानते बसीन। हैवानियत पे सदा उतरते हो तुम नजरों में हमारी, नजरों में हमारी। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया और उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, चुन चुन कर मारा गया, उससे मैं बहुत दुखी हूँ। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और क्या घटना हुई कि घाटी में आतंकी नागों ने फिर से फुफकारा है। पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा है। श्रद्धांजलियां देने कब तक यूं ही कैंडल मार्च करें, श्रद्धांजलियां देने कब तक यूं ही कैंडल मार्च करें। समय आ गया है अब
हम सब मिलकर सैंडल मार्च करें, अब उत्तर देना ही होगा बड़ा करारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज क्या स्थिति है मेरे मन की, सारे भारतीयों के मन की, कि भारत क्रोध में भरा हुआ है, गहन शोक में डूबा है, पूरा हुआ तो हुआ ही कैसे उनका ये मंसूबा है। थोड़ी कमी हमारी भी है, हम चौकन्ने नहीं रहे, कहीं सुरक्षा में चूके हैं, जुड़कर पन्ने नहीं रहे, थोड़ी चूक में हुआ बड़ा नुकसान हमारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। लेकिन एक अपील करूंगी, और अब क्या होने वाला है, पूरा हमारा पड़ोसी मुल्क डरा हुआ है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफ़ी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफ़ी होगी, और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, धर्म पूछकर जो ये गोलियां चलाई गई है, ये 26 हिंदुओं पर गोली नहीं थी, 100 करोड़ हिंदुओं पर गोली थी। मुझे भी लगा कि मुझे गोली मारी गई। उस रात को नींद नहीं आई, घर में चूल्हा नहीं जला। सारे भारत की यही भावना है, और ये सही मौका है। प्रधानमंत्री ने भी ठीक कहा है कि इस बार आर पार होगी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ सब कवियों की ओर से कि ये मौका है, इस बार बख्शना नहीं चाहिए और कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए पड़ोसी को, यही कहना चाहता हूँ। और बलिदानियों को समस्त भारत की ओर से, समस्त कलाकारों की ओर से, समस्त कवियों की ओर से अपने श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। उड़ान के संयोजिका ने कहा कि अब ये नया भारत है, यह आतंक का जवाब देना जानता है। उड़ान की संयोजिका होने के नाते मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस बात का संदेश देने के लिए कि जिस तरह से बर्बरता से, जिस तरह से हमारे 26 हिंदुओं को मारा गया, वो अब ये देश सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये वो देश नहीं है जहाँ पे आप लाशें गिराते जाएं और हम केवल और केवल शांति पाठ सीखते जाएं। अब ये देश उसी तरह से आपको जवाब देगा। ये नया भारत है। आज जिस तरह से मंगलवार को ये घटना हुई है, पूरे देश में आप सोशल मीडिया देखिए, खून खौल रहा है। मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं अपने कॉलेज के विद्यार्थियों से बात कर रही हूँ, सब और सब केवल एक ही बात कर रहे हैं कि मैम हमें किस बात की सज़ा मिली है। उड़ान में युवा विद्यार्थी हैं, अलग अलग वर्टिकल्स के लोग हैं, ये हम क्या अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? अब ये नया देश है, अगर आप हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो हम पूरा का पूरा बदला लेंगे, हम भी उसी तरह से आपको वही पाठ पढ़ाएंगे। अब ये शांति दूत नहीं भारत है, ये शांति का पाठ पढ़ाने वाला भारत नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आतंकी घटना में पीड़ितों के परिवार के साथ एकजुटता दिखाना और लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और 50 मीटर के कैनवास पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।